and along with that, family members of Mrs. Rita Kela. Today we have all gathered here to create some more beautiful memories with our very own Mrs. Rita Kela, who, as already I have shared with you, is the special invitee of today's event, of today's program, no less than VVIP, or VVVIP I should say, who is going to begin a new and beautiful chapter of her life. And we accord again a very warm, cordial welcome to the family members who are here with us. Once again, I would like to introduce, we have Mr. Rajiv Kela, husband of Mrs. Rita Kela, the soulmate also we can say. And we also have brother and sister-in-law, I think a very beautiful relation. And we have two lovely sisters of Mrs. Rita Kela with us. So, that is wonderful. Thank you so very much. Directions, yet the roots remain same. So families where life begins and love never ends. And one more thing I would like to say for the family, because it's such a beautiful occasion, it's such a special day for Mrs. Rita Kela, and has been made all the more beautiful by the joining of the family members. I think family is the support, is the biggest support for all of us, and we really feel good when there is any achievement. Excuse me, Bhavna. So, if there is any sort of accomplishment that is incomplete without the family, I think you all will agree with me here. So, family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song. And I would like to say here, our brothers and sister-in-laws, unconditional, a special smile, a special face, a special someone one cannot replace. So I think the bond that we share with our brothers and sisters is something which is really very precious and something which is very valuable. I think Mrs. Rita Kela, you will agree with this. And before I say anything else, I think I should compliment you for looking so radiant. So pink like a pink rose. I think that would be the best thing to describe you. This planter, or this plant I should say, which is being presented, has seeds of happiness, hope and success, with a wish that all of these grow in abundance for you and your family. So once again, I would request everyone to put the hands together, join the hands, and there is some other token of our love for Mrs. Rita Kela, a small gift from the school. This requires something. Putting your hands together again, that's a good exercise also. And now I would request all three to present the citation to Mrs. Rita Kela. A word of honor for rendering such selfless service to the institution, for her dedication, for her diligence, for her sincerity. I would also request Mrs. P.P. Tiwari to read out the citation. Good afternoon. Good afternoon. आपको पता ही है मैं बड़ा मिक्स बोलती हूँ, इंग्लिश भी हिंदी भी मिक्स, तो कभी हिंदी पे कभी इंग्लिश पे शिफ्ट हो जाऊँ तो प्लीज़। जैसा विन्ना मैम ने बताया, प्रिंसिपल मैम को मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जाना पड़ा, तो उन्होंने मुझे ये ड्यूटी मुझे दे दी। ठीक है, करेंगे। तो I will read the award of honor presented to Rita ma'am on behalf of Principal ma'am.
In recognition of her committed and dedicated service from July 14, 1987 to September 30th, 2022 as an educator par excellence. Her distinctive pedagogical skills and empathetic teaching approaches have instilled appreciation and love for the subject in the learners. Also, her passion for teaching, diverse teaching strategies and creativity have been pivotal in making her classroom a vibrant learning space to explore, experience and the science of joyfully and enabling the students raise the bar of personal achievement. She has been multi-talented role model for her pupils, nurturing different life skills among students. She has mentored students for culinary art with much zeal and dedication. In the capacity of a teacher, her contribution in building the legacy of quality education in young learners is much appreciated. During her tenure, in the capacity of examination system in charge, she managed the routine functioning efficiently and discharged her duties with sincere responsibility. Her amiability, positivity and calm demeanor have won her excellent rapport with colleagues and parents. She has indeed been an asset to the institution. We wish her the best as she opens new chapter in her life. अब मैं कुछ बातें जो इसमें नहीं लिखी हैं लेकिन शेयर करना चाहूँगी। रीटा मैम की खूबियाँ कैरियोके के साथ गाने का बड़ा शौक है मैम को। कान में लगा लिया और धीरे धीरे गुनगुनाते रहे, ये इनका शौक है। ये तो छोड़ो, डांस भी करती हैं और फैशन शो भी करती हैं। कितने लोगों को पता था फैशन शो का? डांस तो पता है हम सबको। ओके। कुकिंग का बहुत शौक है, तरह तरह की वैरायटी, कुछ भी बना लो, कुछ भी बनवा लो, लेकिन इनकी स्पेशलिटी है मैक्रोनी सैलड। सबकी बड़ी डिमांड रहती है, मुझे नहीं खिलाया वो बात है। प्रिंसिपल मैम कल बता रही थी, कल जब सब लोग चले गए थोड़े से हम ही रह गए थे, कि इन्होंने अपना वीविंग का भी टैलेंट शो किया हुआ है और स्कूल को कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखाई हैं वीविंग की। फिर इन्होंने भी काफ़ी कुछ शेयर किया कि कौन सा टॉवल का क्लॉथ, पैंट ट्राउज़र का क्लॉथ, शर्ट का क्लॉथ, उसकी वीविंग में क्या डिफरेंस है, इसकी वीविंग में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी तरह से पता है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कहते तो हम सब हैं, ये करती भी है। एक से एक बढ़िया सामान, न्यूज़पेपर्स इधर उधर फेंके हुए, सबको उठा के इतना सुंदर इन्होंने गुलदस्ता बना दिया, बहुत प्यारा। और भी बहुत कुछ, बहुत मज़े लिए हम लोगों ने भी। 6 महीने बच्चों को खूब सिखवाया ताकि इनका टैलेंट बच्चों में भी तो आगे बढ़े, कहीं ये लेकर चली ही जाए अपना टैलेंट। तो इनके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा, पता नहीं क्या कह सकते हैं उसको, 2 सेंटेंस। काम करो तो परफेक्टली, नहीं तो लेना ही नहीं। तो अगर जो काम वो परफेक्टली कर सकती हैं बस उसी के लिए कहेंगी हाँ मैं करूँगी, वरना तो सीधे सीधे नहीं जी मैं नहीं कर सकती। एनीवे, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। Enjoy the company of your family, friends, especially Mohul and Neha. Thank you so very much, Mrs. Tiwari, for such wonderful words and description. रीटा मैम से बहुत बारी सबके बारे में पूछा, सुना। मेरी सिस्टर ऐसा करती हैं, बहुत सारी चीज़ें। हमेशा जब हम लोग आपस में बैठ के लंच करते थे, रीटा और मैं गगन विहार से, जब ये डीएवी स्कूल दयानंद विहार गगन विहार में था, ऑलमोस्ट मैंने और रीटा ने बहुत साथ साथ ही ज्वाइन किया था और हम दोनों ही क्लास 1 पढ़ाते थे।
सो आप सोच सकते हैं कि कैसे हम 1 से ऊपर आते गए और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी रीटा और मेरी, क्योंकि हम दोनों एक ही सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। तो 6th क्लास में और रीटा कई बार इकट्ठा पढ़ाते थे, क्वेश्चन डिस्कशन करना, इतनी पॉजिटिविटी से रीटा मैम अपने कोई चेंजेस चाहती थी तो बताती थी, कभी भी नेगेटिव कोई मेरे पास नहीं आया। अब एज ए कुलीग भी काम कर रहे हैं, एज ए इंचार्ज भी मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, बट हमेशा पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क, आई रियली अप्रिशिएट हर। उसके अलावा फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें एज ए फैमिली कहीं भी कोई गाइडेंस चाहिए हो, इनका बेटा मेरा बेटा 1 साल का डिफरेंस था, तो हम लोग छोटे होते, मतलब जब हमने स्कूल में ज्वाइन किया था तो हम स्कूल में इतनी बातें स्टाफ रूम में करते थे कि अब ऐसा हो रहा है, इसका बेटा दूसरे स्कूल में था, मेरा बेटा दूसरे में था, तो इवन हम लोग आपस में हर फंक्शन की बात, वहाँ कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ क्या डिफरेंट चल रहा है, मतलब इतनी सपोर्ट मैम देती थी रीटा मैम। और मुझे लगता है डीएवी फैमिली, हमारे स्कूल की फैमिली का एक सबसे बड़ा चार्म यही है कि हमें यहाँ आकर फैमिली की तरह सपोर्ट मिलती है एक दूसरे से, जो हम कभी भी रिटायरमेंट होने के बाद हमेशा उस चीज़ को मिस करेंगे। शायद फ़ोन पे इतना हम डिस्कशन नहीं कर पाए आपस का, बट स्कूल में स्टाफ रूम में हर चीज़ को लेके रीटा मैम हमेशा सबको गाइड बहुत अच्छा करती थी, और भी फेलो कोलीग्स को। एक फैमिली की तरह हमने लंच करना, खाना बनाना सीखना, एवरीथिंग वी लर्न लॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम रीटा मैम। लास्ट में मैं एक ही लाइन कहना चाह रही हूँ, ये दौर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, ये दौर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। Thank you so very much. Very rightly said and very beautifully expressed. So today there is a twist. वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता। जीवन में अगर साथ हो सच्चे रिश्तों का तो जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होगी। रीटा मैम आपके लिए 2 लाइनें। खुदा से क्या मांगूं तेरे वास्ते, खुदा से क्या मांगूं तेरे वास्ते, सदा खुशियों से भरे हो तेरे रास्ते, हंसी तेरे चेहरे पर रहे इस तरह, खुशबू फूल के साथ रहे जिस तरह। आप सभी के सामने आ रहे हैं अपने स्वरों का गुलदस्ता लेकर, स्मृति और रजत मिलकर। तालियों में कंजूसी क्यों करना है, यहाँ तालियों भी रखा है। Before we start, I would like to thank Rajat sir because he's actually setting the ground for me to sing. So thank you, and we can start now. आगे बता
बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। रीटा मैम को आतिफ असलम और जुबिन नौटियाल की बहुत सारे सॉन्ग पसंद हैं, तो इस बार कुछ नया ट्रेंड कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मैम की चॉइसेस के सारे सॉन्ग्स प्रिपेयर किए। मुझे सब पसंद है। आई होप मुझे केयर साइडर भी आप सब पसंद लोग, है। और प्लीज आप सब लोग मेरे साथ गाइए जिसको जितना आता है। मैंने तो धीरे से नदियों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे तुझमें कॉल दे तो मेरे यार बात बन जाए, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बताना पाए बातें दिलों की देखो जो आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। इतना मैं प्यार करा एक पल विच सवार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, सांस आके रुके मैं तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, जो मेरी सांस आके रुके मुझको कितना चाहता, तेरी मेरी गल है होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर, तेरी मेरी गल है होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर, किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए जानता है मैंने रहूं मेरे बिना तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, काटूं कैसे राता ओ सांवरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे के राता, लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे, के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सवार रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, जलती तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ मेरे आ, ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ मेरे आ। थैंक यू रीटा मैम, आपके लिए 4 लाइन फिर से। वो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको, अगर आप मांगे आसमां का एक तारा तो खुदा दे दे सारा आसमान आपको। प्रस्तुत है अभी एक और परफॉर्मेंस, भावना शर्मा म्यूजिक डिपार्टमेंट।
छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, अरे रूठे तो हजूर ये मेरी क्या गला, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, अरे रूठे तो हजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल तोड़ो, अरे देखो हाथ छोड़ो, देखो दिल तोड़ो, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ बनोगे समझे। अच्छा दीदारी में और दिल जला, नहीं अच्छा जी मैं हारी तेरा मान जाओ ना, दीदारी मेरा दिल जलाओ ना। थैंक यू सो मच। एक रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे, मेरे हस्बैंड कहते हैं नो यू आर नॉट गोइंग ही इज देयर आउटसाइड यू आर नॉट गोइंग आई सेड व्हाई यू आर नॉट इनवाइटेड आई डोंट नीड एनी इंफॉर्मेशन मुझे इनविटेशन नहीं चाहिए भगवान भी बोलेगा तो नहीं चाहिए शी इज माय फ्रेंड आई विल गो मैं जाऊंगी इनविटेशन चाहिए नो मैंने कहा शर्मा जी 5 मिनट में मैं आई बस 5 मिनट्स लव यू ऑल मिस यू ऑल मुबारक लुकिंग वेरी नाइस 34 साल की फ्रेंडशिप यार मैं कैसे घर बैठी हूँ बिकॉज़ मैं नहीं करा तू आई हो कैसे नहीं करा तू आई हो मैं तो डर गई थी मीना बड़ी प्रिंसिपल तो मीरा ही है और कोई नहीं है लुक एट हर जो काम के समय नहीं डरी मेरे को ये कर दे तू वो कर दे अब डर गई लव यू ऑल मिस यू ऑल यार some rules regulations of the school na that I have to सभी के ऊपर आई एम सॉरी आई ब्रेक द रूल्स तो प्यार
प्यार, माई लव इज ब्लाइंड। मैं किसी चीज को लागू नहीं करूँगा। यू आर ग्रेट, यू आर डिफरेंट। मैं अब ये कह रही थी कि मीरा जैसी एनर्जी भगवान सबको बोल्डनेस ऑल्सो। Thank you, love you all, and I'm going. Have a nice day. Sharma ji will kill me. Bye. Mira, be here. Mira, we want you here. मैं पूरी कोशिश करूंगी सभी के फेयरवेल में आऊंगी, डोंट वरी। I love you all. ठीक है, बाय एंड हैव अ नाइस डे। Mira, wonderful 30 मार्च को मेरे लिए आना, अभी से इनविटेशन आपके लिए। ओके, वो नहीं अभी बता दिया, ठीक है? एक फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ। मेरा प्यार great gesture for Mrs. Rita. I will just say that she has very well understood the fact that our attitude towards life determines life's attitude towards us. So she has always been a very positive, a very amiable and a very happy-go-lucky sort of a person. So that's the best thing about Mrs. Rita Kela. She also believes that a positive attitude may not solve all our problems, but that is the only option we have if we want to get out of problems. So I think this we can learn from Mrs. Rita Kela, who has always been. Rita, I want a little smile on your face. No, please smile so that I feel good that whatever I'm speaking, you're liking that. So keeping one's attitude positive, especially when the world conspires to make us mad, is one of the great accomplishments of life. So this is what Mrs. Kela has been doing. She has always been a very sweet, if I say, and I would also add that Rita is very fond of shopping. Like Mrs. Singhal was #1, so if we count #2, that can be Rita Kela. And she's a very fun-loving person. And her great culinary skills, we all know that. She has been a very good cook at all the occasions and the events. I think people have really appreciated the great dishes which she had prepared. And with a positive attitude, it is possible to turn situations of failure into success. So this is something I would like to say for each one of us, that how any positive attitude, if we are optimistic, that is sure to change any adverse situation into a success. So, Mrs. Rita Kela has rendered 35 years of committed service to this school, to this institution. Her sincerity and dedication has been reflected in her work. Mrs. Rita Kela is a very fun-loving person, which I already shared with you. Of course, she is fond of all good things in life. A very bubbly, a very chirpy, a very effervescent person who likes to live life king size. So a big round of applause for leading and living a life king size. That is great. Mrs. Banita Tiwari, I would request you. कभी अब नाम तो तेरे आवाज में न लूंगा, आवाज में न लूंगा। Thank you so very much. All is good. संगोष्ठी कक्ष में विराजमान सभी आगंतुक, और मैंने कोई अन्य भाषा का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हंसने की आवश्यकता नहीं है। धारणा मैम, आपकी भाषा कंप्यूटर की हो सकती है, मेरी भाषा वह है जो संवेदना और संवेदन से संयुक्त है, इसलिए हंसने और हंसाने की परंपरा नहीं है कि हम सभी शायद विदेश में नहीं रहते हैं, मैं भारत में रहता हूँ
और भारत की मातृभाषा हिंदी है। और जब कहीं चोट लगती है तो आप किसी मॉम डैड को याद नहीं करते, उन्हीं माँ की आवाज निकलती है। और ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य के सिवाय कुछ नहीं। आदरणीय रीटा काला मैम, उनके जीवन साथी, उनके संवेदनाओं से, आत्मीयता से जुड़े उनके भाई बहन और स्वजन और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे सहयोगी, मेरा लगभग 22 वर्षों का नाता है। मेरी जो ज्वाइनिंग है जुलाई 2000 की है और उसी दिन से लेकर और आज तक अनवरत रीटा काला मैम के साथ मेरा विषयगत संबंध नहीं लेकिन आत्मीय संबंध ज़रूर रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाषा और विषय कभी भी किसी बाधक नहीं बन सकती। बस ज़रूरत है हृदय की, स्नेह की, संवेदना की। और हम सभी एक संस्था में सदस्य बनकर काम करते हैं और इसमें मुझे सौभाग्य रहा कि मुझे उनका स्नेह अनवरत मिलता रहा। कुछ 4-5 साल पहले यातायात की व्यवस्था मिली। अचानक प्रिंसिपल मैम ने ये दायित्व दिया। थोड़ी परेशानी हुई कि कैसे ये निर्वाह होगा, क्योंकि हिंदी विषय पढ़ाना और प्रबंधन करना दोनों ही अलग विषय हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव है तो दूसरा भाषा है। लेकिन जब जब मुझे जहाँ जहाँ समस्या उत्पन्न हुई वहाँ मैडम ने बस नंबर 10 की जो समस्या थी स्वतः पूरी कर ली। शायद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, क्योंकि उनका अनुभव मेरी सर्विस से 15 वर्ष ज़्यादा का है। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। औपचारिकता है मैम, क्योंकि आभार शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है। और मैं इस अवसर पर आपके आगामी जो भविष्य है वो दोनों, आप अगर जो है रेल की पटरियाँ हैं तो बच्चे उसके डिब्बे हैं और ये गाड़ी निरंतर अनवरत चलती रहे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, शतायु हों और आपकी जोड़ी और आपका परिवार शुद्ध, समृद्ध और शांति को प्राप्त करते हुए अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभेच्छाएं। और हिंदी विभाग की मेरी अध्यक्षा हैं, वह संपन्न करेगी विभाग की ओर से। लेकिन अल्पज्ञ के नाते आपने जो मेरा सहयोग किया उसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक सब कुछ हो चुका है, सब कुछ बता दिया है। इतनी यादें हैं कि उसको वही कि 5 मिनट में मैं उसको आई कांट डिस्क्राइब। यू नो, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। You know, after completing 35 years in this school, you know, I'll just take the good moments, I'll cherish the good moments of my school, my colleagues. And you know, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मतलब 35 साल मैं आज सोच रही हूँ कि कैसे बीत रहे 35 साल, और मुझे अभी भी नहीं लग रहा मैं जा रही हूँ। लेकिन ये उम्र का तकाजा है ना, भेजेंगे, भेज के छोड़ेंगे। सबको थैंक्स, सबको, जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, और एग्जामिनेशन रूम जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, गोपाल, मनवीर और एक और हमारे सर होते थे बेनी, उन्होंने मुझे कंप्यूटर्स में बहुत हेल्प करी सिखाने में। जब भी मैं फ्री होती थी मैं कंप्यूटर पे ही बैठ जाती थी, मुझे टाइपिंग सिखा दो, मुझे खाली नहीं बैठना, मुझे कुछ सीखना ही है। सो they gave me so much support every time. Because of that I just fulfilled the duty of this examination room. And my colleague जिनके साथ में लंच शेयर करते हैं हम, उस टाइम ये कैसे बनाया, ये क्या डाला है इसमें, ये क्या किया हुआ है बता दो यार। हाँ, जो बुफे होता था हमारा ना, वो मैं मिस करूँगी।
और मॉर्निंग में जब हम आके साइन करते थे वो रेड मार्क्स सब बेचारे भाग रहे होते थे, मैं तो स्कूल बस में आराम से आ जाती थी और सबका मेरा ना तीसरा रेड मार्क है, मैंने कहा पार्क में बैठ जाए। तो ये सारी मोमेंट्स इतनी छोटी बातें हैं, लेकिन इन चीज़ों को याद कर करके और कुछ कुछ बच्चों की ऐसे बातें, जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी तो मुझे फर्स्ट क्लास मिली थी, नॉट इन दिस स्कूल बिकॉज 84 to 87 आई वॉज वर्किंग इन DAV कैलाश हिल्स बिफोर मैरिज। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट डे और फर्स्ट क्लास के बच्चे मिल गए मुझे, जो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। और मैंने पढ़ाए थे हरियाणा में 11-12 के लड़के और जो मैरिड भी होते थे कहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मिली टीचिंग के बाद और मैं क्लास में गई, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था मेरे से और ना मुझे कुछ नहीं आता था, इनकी डायरी कैसे लिखनी है, भेज दिया क्लास में फर्स्ट क्लास में। तो लंच खा रहे, मुझे कुछ ना खुशबू सी आई, मैंने कहा कौन लंच खा रहा है। मैं इतने प्यार से, वो मुझे बच्चे की शक्ल नहीं भूलती आज तक ना, वो 40 ईयर्स का हो चुका होगा अभी तक। तो मुझे कहता हम खाना नहीं खा रहे, हम अतार तात रहे हैं। वो मोमेंट मैं भूल ही नहीं आज तक, हम अतार तात रहे हैं। मैं भूल नहीं सकती आज तक वो वर्ड ना कि अतार तात रहे। मैंने कहा यार ये होते हैं बच्चे तो, कि हमने खाना नहीं खाया। मैं मतलब कुछ ऐसी बातें यहाँ पे होती, मैं अपना यहाँ पे भी आज भी घर जाती हूँ ना तो पहले अपने हस्बैंड बैग कंधे पे होता है, आज ये हो गया था स्कूल में, आज ये इस बच्चे ने ऐसे किया, आज ये हो गया। तो मैं ये ही इज अ गुड लिसनर। नहीं क्या पता कितना सुनते हैं, अभी क्या सुना घर जाके। तो थैंक यू ऑल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ नाइस इवेंट फॉर मी। मैं याद करती रहूंगी, सबको याद करती रहूंगी, हाँ, याद करती रहूंगी। थैंक यू गुंजन, मैंने बहुत डिस्टर्ब किया आपको। मुझे ये टेंशन थी कि क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मोहुल कलेक्ट कर रहा था वीडियो, कहता आपके लिए सरप्राइज होगा सब कुछ सरप्राइज ओपन हो गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कि काम ठीक होना चाहिए। मेरा एक ही यही एम होता है कि वर्क शुड बी डन प्रॉपर्ली, चाहे किसी की हेल्प से हो कुछ हो, मुझे ये टेंशन रहती है माइंड में भी। तो टेंशन डेज आर ओवर नाउ, आई विल प्रोसीड टू माय दिस रिलैक्सिंग डेज नाउ। नो टेंशन ऑफ रेड मार्क, नो टेंशन ऑफ दिस अटेंडिंग स्कूल। पर मैंने भी मैम से कहा था, मैम मैं 4-5 दिन बाद अपना जो नाम हटाऊंगी ग्रुप से, अभी नहीं, क्योंकि फिर भी मुझे मैसेजेस चाहिए जब तक मैं ओके। थैंक यू ऑल फॉर सच अ नाइस दिस आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम लिया आपका, आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको भी 20 मिनट की वीडियो भी देखनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच। और मैंने इंदु आपका वाला लिखा था कि ये दौर तो बीत जाएगा तो वही पढ़ देती हूँ मैं भी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ बात थी और उसमें भी कुछ बात होगी। और एक छोटा सा सॉन्ग भी मैंने सोचा था, लेट मी ट्राई। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you so very much.